Hi, good morning, Vishnu. Good morning, ma'am. How are you? Fine, ma'am. How are you? I'm also good, thank you. This time lab completed, madam. All the EH are onboarded. Everything is up. Yeah, everything is up. Wow, great. So it means we'll start your pod only today for the templates and everything. No problem. Just starting. I completed day before yesterday. Day I'll before start. yesterday. Yeah. Check it is working now also or not. Yeah, ma'am. That only I'm checking. Because I said them that it should not be deleted. Yeah. Good morning, ma'am. Shall I join? Good morning. How are you? Fine, thank you. How about you? So Silesh, you don't start the lab because Vishnu is starting the lab. Yeah, no problem, ma'am. Okay. So we'll check first Vishnu and then after that we'll come to you. No problem. Actually, I have configured the underline SD-WAN family configuration. After that, during the installing of a certificate, it shows some issues, means log out continuously. Okay. So, still SD family we have configured, but not the certificate. Okay. So Vishnu has completed his lab anyhow. So Vishnu, you did not check your email. I sent you an email. Ma'am, that only I'm trying to tell. Actually, mine TCS almost all process completed. For Ericsson, I also get the call, and Geo also get the call on the same day. Oh, So that only great. I'm trying to tell, like, because if I have a reference, I don't want to waste it. Right. No. Congratulations. Thank you, ma'am. Thank you so much. Right. Because there is an opening for Bangalore office only specifically, and they Okay. are only looking for SD-WAN expert. Okay, ma'am. Right. Only their concern is what, even though they are ready to pay up to 30. Okay, ma'am. But in Bangalore, nobody is ready as an SD-WAN expert to get 30. Yeah. They are demanding 45. Okay. Oh my God. Yes, that's the value of SD-WAN Yeah. professionals. Okay, ma'am. So you are getting it, but Ma'am, I told you that my interview was done on TCS. So it was on SD-WAN only. So they at the time they told me that 30%. So what I told, they given to my expectation. right, that is very easy for them to give it Yeah. because for Bangalore location, it's high in demand. Yeah. Then again, because if you forwarding my CV and if I am means after before that I am getting the job and I'm not joining, that is also not Yes, that is not good. good. That Yeah. is not good. With the reference, it is not good. Yeah. So what I was saying, if you're joining TCS, though TCS is a good company, it's a retirement, you can take retirement from it if it's everything goes well, right? Yeah. But in case if you're switching, Yeah. while switching, make sure that you're joining a company where you can get the retirement, Yeah. Sure. right? Yeah. Sure, So ma'am. choose like that kind of company and good package. Yeah. So don't switch now because of salary. Yeah, ma'am. Correct. I know that you will be an SD-WAN professional and there'll be high demand. People will Yeah. offer you good Yeah. package, but make sure that you're joining a company where you can get the reliability that Yeah. your Yeah. job is secure. Yeah, ma'am. Right. You guys have heard that a lot of companies are firing right now.
Yeah, when in FANG companies now started. Yes. Many companies have started firing. Yeah, And it's actually difficult for them, those they will be fired. true. Because everybody has a base plan. They would have taken their homes on loan. Yeah. And the main problem with all is commitments only. Right. Nowadays it is like that only. When they start getting salary, so they plan accordingly. Yeah, Okay, we can easily pay for 20 years. And home is actually a basic requirement in India. correct, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Good morning. How are you? Yeah, I'm fine, ma'am. What about you? Also good, thank you. Yes. So what is the status of your lab? Don't start it, but you have to tell me the status. मैम my lab is all completed. ठीक है, मैं कल मतलब अभी जस्ट मेरा लैब ऑन ही है. अगर Okay. मैं अभी जस्ट लॉग आउट करने ही जा रहा हूँ बिकॉज एक No, मिनट no, एक no, मिनट don't log out. लॉग Don't आउट log मत out. कीजिएगा, लॉग आउट मत कीजिएगा. Don't log मैं- out. एक्चुअली ना मैं आई हैव ज्वाइन फ्रॉम माय मोबाइल. ठीक है, तो विष्णु भाई अगर आप मेरा लैब ओपन कर लीजिएगा या शैलेश भाई नहीं नहीं, आप अगर अभी लॉग आउट मत करो. चाहे मोबाइल से ज्वाइन किया, आप अपनी लैब मत लॉग आउट करो अभी. ठीक है ओके ओके मैम. Okay. मैम मेरा सारा VHS ऑनबोर्डेड है. ओके हम्म. बस मैं वही कर नहीं पाया. मतलब अभी मैं जस्ट Template. कर रहा था लेकिन लैब बहुत स्लो हो गया. जस्ट 2 मिनट का काम बाकी था मेरा. मैं हाँ, सुबह मतलब बहुत जैसे ज्यादा मैं- बहुत ज्यादा. Because no bush se hi, there are many people, those they are online. मैम गुड मॉर्निंग. Good morning, Om Prakash. How are you? मैम यस मैं ठीक हूँ. मैम आप कैसे हैं? बस बढ़िया. मैम मैंने अपना वो ये टेम्पलेट वगैरह बना लिए थे, तो क्या दिखाऊं आपको? हाँ जी. लेकिन मुझे लैब ऑन नहीं करना अभी नहीं, पड़ेगा. अभी नहीं. आपने बना लिया. Did you have any doubt? नहीं, मुझे डाउट्स तो नहीं लगे कुछ. कुछ नहीं है. नहीं. Okay. Everything is well settled. हाँ Easy process है ना? हाँ इजी है. मतलब और आपने बताया आपने मैम, आपने बताया इतने अच्छे से कि इजी लग रहा है. अच्छा, चलो थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. बट अभी आपने सिर्फ टेम्पलेट बनाना सीखा है. यू डोंट नो हाउ टू यूज इट. मे बी आपको आता हो, बट मैंने अभी टेम्पलेट को यूज करना नहीं सिखाया. राइट. So from my end, this task is pending that I need to teach you how to use the template. Okay. Now let me know that you want first हम ये template को use करना करें या हम policy based routing start कर दें, because policy based routing के अंदर हमें template use करने ही है. अगर हमारी लैब ओपन हो जाती है प्रॉपरली, राइट, तो हम क्या करेंगे? टेम्पलेट को यूज करना सीख लेंगे. ठीक है. इन केस अगर लैब में कोई चैलेंजेस आता है, किसी का भी पोर्ट ओपन नहीं होता है, तो आई विल कीप इट फॉर टुमारो. आज मैं पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की थ्योरी करा दूंगी, राइट, विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीबडी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिसीज एंड हाउ द पॉलिसीज आर इन प्लेस्ड. कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करते हैं, कहाँ पे क्रिएट करते हैं पॉलिसीज को, कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज को. ऑल दिस थिंग्स आई विल टीच यू टुडे. इज इट फाइन? बताओ Yes. कहाँ से स्टार्ट करें? यस मैम, लग तो रहा है क्योंकि मेरा लैब चल नहीं रहा मैम, बहुत मैम स्लो. मैंने क्या नोट किया है ना, मैंने ये नोटिस किया कि जो मुझे ना प्रीवियस कुछ वीक में ना प्रॉब्लम फेस किया था मैंने लैब के साथ, तो मैंने उनको कंप्लेन किया, तो उन्होंने मुझे कुछ दूसरे लैब या रैक्स के लिए मुझे एक्सेस दिया है, तो वो मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा. मैं आजकल बहुत अच्छा चल रहा है. राइट राइट. maybe वो मैंने भी difference- यही बात उनसे की थी, तो उन्होंने मेरे को यही बोला है कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स का हमें स्क्रीनशॉट दे दो and we will migrate them at least for next 2 to 3 weeks. We'll migrate them to a
न्यू सर्वर, अभी उन्होंने एक नया सर्वर लिया जिसपे अभी उन्होंने लोड नहीं डाला कुछ भी, राइट। सो यही चीज उन्होंने मेरे को भी बोली है, तो आज इसीलिए मैं बोल रही थी अगर हमारी लैब वर्क कर गई तो ठीक है, नहीं करी तो हम थ्योरी करेंगे और कल से प्रैक्टिकल करेंगे और कल से आप लोगों को माइग्रेट कर दिया जाएगा एक न्यू सर्वर पे। तो आपके पास आज का टाइम होगा, आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेना क्विकली, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इन केस अगर टाइम नहीं है, फैमिली टाइम स्पेंड करना है, तो आप रात को बैठ के कर लेना, कल अर्ली मॉर्निंग में कर लेना। इज इट ओके? हाँ मैडम वैसे मेरा लैब तो चल रहा है, पर वही मतलब क्या बोलते हैं, मैं सिर्फ ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया हूँ, मतलब सिर्फ वो सर्टिफिकेट, बहुत सारा काम है, तो ये काम करते हैं, आज थ्योरी कवर कर लेते हैं, कल तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। बट अभी ये माइग्रेशन हो जाएगा, अगर माइग्रेशन होगा तो सारी कॉन्फ़िगरेशन फिर से जाएगी सबकी। माइग्रेशन करा ही दीजिए मैम, तो स्टेबल रहेगा थोड़ा सा। हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ, माइग्रेशन configuration करा दूं, बट लेकिन फिर भी कॉन्फ़िगरेशन चली जाती है माइग्रेशन हाँ, कराने no के बाद भी, problem। बट आपका काम चलेगा अच्छे से अभी फिलहाल, ठीक है मैम, एक बार और कर लेंगे। है ना? हाँ एक बार और कर लोगे, बट हम्म। मैं हाँ वही मेरे को आज स्क्रीनशॉट लेके ही उनको देना है, क्योंकि मैंने उनको सीधे बोल दिया था मैं बैच नहीं लूंगी, पॉलिसीज नहीं पढ़ाऊंगी अगर आप मेरे को लैब की स्टेबिलिटी नहीं दोगे तो। दो मैं कराती, ऐसा नहीं है, राइट? बट आप लोगों Yeah. के सेक की वजह से आई सेड दैट। मैम फिर कौन सा मतलब यही पोर्ट नंबर के थ्रू वी हैव टू लॉग इन और नहीं, वो वी विल सब गेट अपने आप दे देंगे आपको, ओके आई मीन we'll get emails from the networkings, right? ईमेल्स आएगा, ईमेल्स नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का रीडायरेक्शन हो जाएगा। बाकी ओम प्रकाश अच्छे से बता पाएंगे। ओम प्रकाश क्या हुआ था, उन्होंने क्या दिया था आपको? मैंने तो स्क्रीनशॉट ही दिया था, मतलब उन्होंने मांगा नहीं था मेरे से, बट मैं जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था मैंने स्क्रीनशॉट दे दिया था, उन्होंने मुझे दूसरे यूआरएल दिए, दूसरे मतलब यूआरएल में थोड़ा चेंज था। तो आपको मेल करके दिया ना उन्होंने यूआरएल? मैंने मेल किया था, उन्होंने भी मेल पे रिप्लाई दिया कि प्लीज चेक नाउ। तो मुझे दो हफ्ते से तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, आ नहीं रही है जब से मैंने यूज किया है। तो एक काम करते हैं, बाकी सब लोग अपनी अपनी लैब बंद करो, ओम प्रकाश जी अपनी लैब ओपन करो। और सीपीयू की यूटिलाइजेशन वगैरह भी अच्छी रहती है उसमें, मैंने देखा ही नहीं कभी 15% से ऊपर जाते हैं सीपीयू को। तो इज इट फाइन? तो सब लोग अपनी लैब बंद करते हैं। बट अभी क्या स्टेटस है पता नहीं, अभी तो देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ओम प्रकाश जी, ऑन तो करके देख लेते हैं, 5 मिनट ही लगेंगे। बिकॉज अगर टेम्पलेट्स को यूज करना आ जाता है, थ्योरी तो मैं फिर भी कराऊंगी। टेम्पलेट्स को यूज करना आ जाता है तो इट इज गुड, बिकॉज थ्योरी मेरी मैं मैक्सिमम स्टार्ट 1 करूँ आवर लैब लेगी। को? हाँ जी, लैब स्टार्ट करूँ क्या? हाँ आप करो ओम प्रकाश जी लैब स्टार्ट, और बाकी सब अपनी लैब ऑफ कर दो। ठीक है। मेरा लैब मेरा off। ऑलरेडी चल रहा है, तो आप भी कर दो ऑफ देवसिस। पर मैं off। वो एक मिनट, ओम प्रकाश हम्म, आपका 8083 है क्या? नहीं मुझे चेंज करके दिया था 8094 पोर्ट नंबर के साथ। तो ठीक है, ये कुछ तो मतलब रिलेटेड नहीं है ना मैडम, मैं मतलब नहीं नहीं पगला- नहीं 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 रिलेटेड नहीं है, हाँ, बट हाँ, स्टिल मेरे को लगा था कि फोकस क्यों इधर करना है, बट आप ऑन रखना चाहते हो तो ऑन रख लो, अगर चल रहा है तो ऑन रखो, हाँ ठीक है। ठीक नहीं है? नहीं एज मैंने, सच रिलेटेड नहीं है। अच्छा ठीक है। Ma'am, I have 2 questions, ma'am. यस प्लीज ओपन। Ma'am, first question है कि when you onboarded the devices, these devices, as you told that vBond will be, I mean, authentications, validation and authentication will happen, and then tunnel will up, then vBond will show to vManage and vMask, vSmart, VH को बोल देगा this is my this is your VH, this is your vSmart and this is your vManage, and simultaneously vBond के साथ उसका जो कनेक्शन है that will be teared down and it will be start to communicate with parallelly with vManage and vSmart, right? राइट। यहाँ पे जब हम लोग कंट्रोल कनेक्शन, जब मैं कंट्रोल कनेक्शन वी आर गिविंग द कमांड इन द VH शो कंट्रोल कनेक्शंस, वहां पे vBond का टीयर डाउन नहीं हो रहा है, वो अप ही है। इवेंचुअली मेरा प्रोडक्शन में, मेरा ऑफिस का वहां पे मैं चेक कर रहा हूँ, शो एसडीएन, वहां पे सीएज है, शो एसडीएन कंट्रोल कनेक्शन देके देयर आई एम गेटिंग ओनली द vSmart and the manage. Why I am not getting here, I mean why it is not tiered down?
दैट इज द आई मीन ये क्या ये है क्या मतलब हम लोग बग बोल सकते हैं क्या इसमें क्या और कुछ हाँ अलग? हाँ इसमें ना कुछ iOS का बग बोल सकते हैं कि iOS का बग है, बट जो एक्चुअल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल है वो टीयर डाउन होना चाहिए। हम्म राइट मैंने अगर आपको कई बार या डेमो दिया है, तो डेमो के अंदर हमेशा टीयर डाउन हुआ है। हाँ लेकिन मेरा लैब में ना वो टीयर डाउन नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या किया ना, I've gone to the vBond and then I've given the command clear control connections, तब वो डाउन हो गया। अच्छा हाँ, तो दिस इज व्हाट जस्ट वो हैंग हो गया होगा वहीं पर और आपको आउटपुट नहीं दिखा रहा होगा। बैकएंड में टीयर डाउन हो गया होगा बट आपको आउटपुट नहीं दिखा रहा होगा। एग्जैक्टली। राइट लास्ट क्वेश्चंस, मेरा ऑर्गेनाइजेशन में ना यहाँ पे नॉन रेजिलिएंट, रेजिलिएंट एंड फुली रेजिलिएंट है, ठीक है। ओके तो ये लोग क्या कर रहे हैं, नॉन रेजिलिएंट में क्या हो रहा है कि सिंगल एक एज डिवाइस, वो एज डिवाइस एक ही वैन कनेक्शन से, एक ही सप्लायर से, ठीक है। ये हो ओके गया नॉन एक सर्विस रेजिलिएंट। प्रोवाइडर एक डिवाइस। हाँ, नॉन रेजिलिएंट हो गया। रेजिलिएंट साइट को क्या बोल रहा है, देयर विल बी 2 डिवाइसेस इन द सेम लोकेशंस, एक ही लोकेशन में 2 डिवाइस रहेगा, फिजिकल डिवाइस या वर्चुअल डिवाइस जो भी होगा, दोनों का अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर होगा। सपोज एक एयरटेल हो गया, एक वोडाफोन हो गया, और दोनों के अंदर टीलॉक एक्सटेंशन होगा। हाँ दोनों में टीलॉक एक्सटेंशन होगा। ये हो गया, परफेक्ट ये हो गया रेजिलिएंट साइट, ठीक है। रेजिलिएंट साइट राइट। अगर आप अभी जो मतलब अभी जो मेरा अंडरस्टैंडिंग में समझ में नहीं पाया, एक्चुअली मैं आई वाज गोइंग थ्रू द HLD, ठीक है। वहां पे मतलब फुली रेजिलिएंट में क्या बोल रहा है ना मैम, फुली रेजिलिएंट में बोल रहा है कि 2 लोकेशंस डिफरेंट डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस है, सब एक सिटी के अंदर। सपोज एक कोलकाता हो गया, एक बैंगलोर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 डिवाइसेस है, 2 वैन कनेक्शंस है। सपोज कोलकाता इज कनेक्टेड टू वोडाफोन एंड बैंगलोर इज कनेक्टेड टू एयरटेल, ठीक है। अभी दोनों के बीच कोई टीलॉक एक्सटेंशन नहीं है, but they are using the same site ID because they don't want both city Bangalore and Kolkata city का अंदर कोई टनल, मतलब कोई डेटा प्लेन, कोई मतलब सॉरी उसको क्या बोलते हैं, हाँ उसको आईपीसेक का टनल नहीं होना चाहिए। हाँ टनल नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई तो साइट आईडी सेम साइट आईडी यूज कर रहे हैं। So my question is why we are doing this? What is the benefit of this? And why we are doing like this? And why we are saying this is a fully resilient? उसमें सर्विस प्रोवाइडर कितने हैं मुझे ये बताओ। एक एक करके हैं। एक एक है। Are you sure एक एक सर्विस प्रोवाइडर? Yes, yes, 200% sure. 200% श्योर एक एक सर्विस प्रोवाइडर। तो क्या सर्विस प्रोवाइडर ने बैकएंड में जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं अंडरले की कनेक्टिविटी कैसे? अच्छा ये बताओ उसमें। अंडरले की कनेक्टिविटी दोनों वैन पोर्ट G0/0/0 से दोनों वैन पोर्ट है, दोनों का सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे नॉज या कोल्ड सर्विस प्रोवाइडर, दोनों 2 प्रोटोकॉल का डिवाइस है एक्चुअली। दोनों का डिवाइस सप्लायर सेम ही सप्लायर्स हैं, दे आर यूजिंग द सेम साइट आईडी, ओके। और हाँ दे आर यूजिंग द सेम साइट आईडी, एक ही सिंगल ही वैन है यहाँ पे। और एक चीज है यहाँ पे ना, ओएमपी प्रेफरेंस दिया गया हुआ है, मतलब एक साइड का ओएमपी प्रेफरेंस 110 है और एक साइड का 100 है। तो ट्रैफिक क्या जा रहा है? एक ही साइड से जा रहा है। सारा ट्रैफिक बाहर कैसे जाएगा? एक ही साइड से जाएगा। दैट्स द रीजन दे आर कॉलिंग इट व्हाट फुली रेजिलिएंस। अब सुनो, यहाँ पे पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड है। यस यस यस, कंट्रोल प्लेन पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड है यहाँ पे, और कंट्रोल प्लेन पॉलिसी क्या कर रही है? फोर्स कर रही है ट्रैफिक विल ओनली गो आउट फ्रॉम वन पर्टिकुलर साइट, नॉट फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट। अब उसमें रीजन क्या हो सकता है? आपकी एक साइड पे ज्यादा सिक्योर डिवाइसेस होंगी, या कुछ ऐसा रीजन होगा जहां पे कोई ऐसी पॉलिसी इन्फोर्स होती होगी, वहां से आपको लेस एक्सपेंस पड़ रहा होगा या मोर नंबर ऑफ यूजर्स होंगे, राइट। तो वहां पे उन्होंने ऐसे पॉलिसी कर रखी है कि दोनों साइड्स का ट्रैफिक एक ही साइड से जाएगा, right? Like let's take an example. Let's take an example. Bangalore is the outside, right? Okay. Bangalore site is what sending traffic out over the van, right? तो आपकी जो कैलकाटा साइट है, कैलकाटा साइट इज कॉन्फ़िगर्ड इन सच ए वे कि वहां से जो भी ट्रैफिक होगा वो ट्रैफिक ट्रेवल करेगा बैंगलोर साइट पर। तो उसके लिए कोई उन्होंने आउटपुट बनाया ही नहीं। उसको क्या कंसीडर कर लिया? एक लैन एक्सटेंशन कंसीडर कर लिया। तो एक क्या हो गई? वो सर्विस साइड हो गई। So that is what only survey site.
सो दोनों साइड के VPNs भी जो होंगे ना वो सेम होंगे, हाँ एग्जैक्टली, दोनों साइड का जो Right? सर्विस VPN है वो दैट आर द दोनों सेम। सेम होंगे, राइट? तो उन्होंने उसे क्या क्या कंसिडर कर लिया, सिर्फ एक LAN का एक्सटेंशन कंसिडर कर लिया। दैट And मींस यू आर सेइंग, मतलब मैम जो मेंबर फॉर्म है, मेंबर फॉर्म से कोई एक लैन एक्सटेंशन है, मतलब मुंबई Right. मतलब okay, okay, that means member firm to member firm definitely should be a connection, because we are not, I mean our organization is not checking, I mean not working for I mean underlay connections and all. ठीक है, हम लोग सिर्फ Okay. WAN पैड देख रहे हैं, मतलब Okay. फर्स्ट एज डिवाइसेस आर देयर एंड एज के बाद पालो अल्टो तक हम लोग का एक्सेस है। अभी पालो का नीचे क्या क्या है we don't know about the member firm also, so that you are saying both member firms are connected with each other via maybe a LAN connections, right? right. Okay. Got it? अब हर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो मैंने Exactly. टीलोक एक्सटेंशन का टॉपिक अभी तक टच नहीं किया। आफ्टर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग मेरे पास सिर्फ टीलोक एक्सटेंशन ही रह गया आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? तो वो बहुत Exactly. इजी है कॉन्फ़िगर करना। तो वो मैं आपको बता दूंगी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। वो हमारा लैब ही एक्चुअली अप नहीं हो पा रहा प्रॉपर्ली, इस रीजन से मैं आप लोगों को बता नहीं पा रही हूँ टीलोक एक्सटेंशन, राइट? तो अब टीलोक एक्सटेंशन की जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग होती है और बहुत अलग अलग सिनेरियोज होते हैं। मैं आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड सिनेरियो एक्सप्लेन कर दूंगी, बाकी सिनेरियोज आप खुद अपने आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप कैलकुलेट करते रहना। Okay, ma'am. Thank you बिकॉज so much. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो सिनेरियोज अलग अलग होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन सिनेरियोज को कॉमनली यूज नहीं करती है, राइट? इट्स द सिमिलर वे जैसे हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क में रिडंडेंसी होती थी, Exactly. राइट? हर ऑर्गेनाइजेशन को रिडंडेंट बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज होते थे। सेम वे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज हो रहे हैं रेजिलेंसी के लिए। तो अब रेजिलेंसी जैसी रिक्वायर्ड है वैसे, ठीक है? यहाँ पे एक टर्म आती है, कभी आपने एसडी वैन की डेफिनेशन पढ़ी हो तो एसडी वैन की डेफिनेशन में कौन कौन सी टर्म्स आती हैं, क्या आप मेरे को बता सकते हो? अब गूगल पे जाओ, एसडी वैन लिखो। मीनवाइल ओम प्रकाश जी, आपकी लैब अप हो गई? हाँ, लैब ऑन कर लिया है, बस मैंने राउटर्स को लॉगिन नहीं किया बस। तो करो, लॉगिन करो, पता करें हम कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। तब तक मैं ये क्वेश्चन के आंसर्स देती हूँ। देखा, डेफिनेशन देखी? हाँ मैम, चेक करो क्या यहाँ पे। डेफिनेशन लिखी हुई है? A software defined wide area network is a wide area network that use software defined technology, ऐसे करके बोल रहे हैं, मतलब such अच्छा, as ये communicate तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन हो गई। थोड़ी एडवांस डेफिनेशन पर आओ, जिसके अंदर उसके फीचर्स लिखे हो कि वो क्या क्या सपोर्ट करता है, लाइक इट सपोर्ट्स PBR, इस तरीके से ना एक वर्ड होगा, सर्विस चेनिंग। Did you find that word service chaining? No ma'am, still not. कहीं और देखो, मोर टेक्निकल डेफिनेशंस देखो, जहाँ पे आपको सर्विस चेनिंग इसका एक मेन फीचर है, वेरी गुड फीचर एज एन सर्विस चेनिंग। तो अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो तीसरा सिनेरियो ना, बैंगलोर और कोलकाता वाला, दैट इज कॉन्फ़िगर्ड एज एन सर्विस चेनिंग। इस कंसेप्ट को सर्विस चेनिंग बोलते हैं, जिसके अंदर हम ट्रैफिक अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं। Okay. हमने SD WAN के प्रिंसिपल्स तो हमें पता है, we will use all those SD WAN principles. By using all those SD WAN principles, we wanted to modify the traffic the way we want. That is known as an service chaining. तो हमने अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग we want traffic should go out only from one side, not from both the sides. तो हमने अपनी सर्विस के अकॉर्डिंग एक चेन बना दी कि कोलकाता साइड का ट्रैफिक बैंगलोर को आएगा या बैंगलोर का कोलकाता को आएगा, और जिसके पास आएगा दैट साइट हैज टू सेंड द ट्रैफिक आउट।
गेटिंग इट? तो फुली रेजिलियंस के अंदर क्या okay. कॉन्फ़िगर्ड है आपका? वहां पे सर्विस चेनिंग की पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड है। तो पॉलिसी कहते हैं हम उसको, बट वो पॉलिसी किस तरीके की कॉन्फ़िगर्ड है? सर्विस चेनिंग की पॉलिसी है। Exactly. गेटिंग इट? Yes, yes, ma'am. So is it okay with others as well that what exactly is the service chaining? नो मैम। No? अच्छा देखो, बाय डिफॉल्ट जो इन्होंने सिनेरियो बताया, इनके सिनेरियो के अकॉर्डिंग ट्रैफिक क्या होना चाहिए? बैंगलोर साइड का बैंगलोर से आउट होना चाहिए और कलकत्ता साइड का कलकत्ता से आउट होना चाहिए, और दोनों साइड के बीच में एक आईपीसेक की डेटा प्लेन की टनल बननी चाहिए, राइट और नॉट? राइट, बट हो क्या रहा है? देयर इज नो डेटा प्लेन टनल इन बोथ द साइड्स, और दोनों साइड्स के बीच में क्या हो रहा है? ट्रैफिक, दोनों के पास अपना अपना सर्विस प्रोवाइडर है टू सेंड ट्रैफिक आउट, बट एक सर्विस प्रोवाइडर दूसरी साइड के साथ दूसरी साइड को ट्रैफिक सेंड कर रहा है थ्रू अंडरले एंड ओवरले टनल। तो इट इज कंसिडर एज एन व्हाट? एक्सटेंडेड लैन। इट इज कंसिडर एज एन व्हाट? एक्सटेंडेड लैन। उसके लिए पॉलिसीज कॉन्फ़िगर्ड है। ये सिनेरियो जनरली हम तब इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमारी एक साइड पे हमारी सारी सिक्योरिटी डिवाइस कैप्ट है और हमारी एक साइड पे एप्लीकेशन सर्वर्स अवेलेबल है एंड वी वांट सारा ट्रैफिक उस पर्टिकुलर साइट पर आए। दैट्स वेयर इन वी कॉन्फ़िगर दीस सिनेरियोस, राइट? जैसे पहले होता था कि अगर कस्टमर की 100 साइट्स हैं तो 100 साइट्स पे 100 सिक्योरिटी डिवाइसेस तो नहीं लगा सकते ना? कितनी सिक्योरिटी डिवाइसेस लगा सकते हैं हम? अगर हम 100 सिक्योरिटी डिवाइसेस लगाने लग जाएंगे तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती थी? डेटा सेंटर में लगा लेते हैं। डेटा सेंटर में लगा लेते हैं और सारा ट्रैफिक डेटा सेंटर में रीडायरेक्ट कर देते हैं और डेटा सेंटर से इंटरनेट की कनेक्टिविटी जाती है। बाकी साइट से डायरेक्टली इंटरनेट को ट्रैफिक रीच नहीं करता। बाकी साइट्स के पास सिर्फ वीपीएन की कनेक्टिविटी है और डेटा सेंटर साइट के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। तो जितना भी ट्रैफिक इंटरनेट पे रीडायरेक्ट होगा वो किसके थ्रू रीडायरेक्ट होगा? डेटा सेंटर के थ्रू। तो इन केस अगर आप किसी एक लोकेशन पे बैठे हैं और आपको क्या करना है? इंटरनेट एक्सेस करना है, तो आपकी जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है अगर आप उसे ट्रेस रूट करोगे तो वो कैसे जाएगी? आपकी साइट से आउट होगी गेटवे पे, गेटवे से जो डेटा सेंटर है डेटा सेंटर के गेटवे पे इन होगी और देन डेटा सेंटर का गेटवे प्रोसेस करेगा, उसको सेंड करेगा सिक्योरिटी डिवाइस पे, सिक्योरिटी डिवाइस फिल्टर करेगी ट्रैफिक को एंड देन द ट्रैफिक विल गो आउट टू एक्सेस द इंटरनेट। तो कभी अगर आपकी कंपनी में कुछ ऐसा सिनेरियो, कभी आपने ट्रेस रूट भी किया होगा, चेक भी किया होगा कि ट्रैफिक कैसे राउट होता है। इज इट ओके ओम प्रकाश जी? ये था ओल्डर सिनेरियो, बट न्यू सिनेरियो में इसको क्या बोलते हैं? हमने क्या कर दिया? सर्विस चेनिंग कॉन्फ़िगर कर दी। तो इंटरनेट का जितना भी ट्रैफिक है या किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन का जितना भी ट्रैफिक है दैट विल बी रीडायरेक्टेड टू वन पर्टिकुलर साइट। उस पर्टिकुलर साइट पे आपका एक फिल्टर सर्वर अवेलेबल है या उस पर्टिकुलर साइट पे ही आपका एप्लीकेशन सर्वर है टू एक्सेस द डेटा। So there'll be no data plane tunnel. It is configured as an what? Extended LAN. Are we okay? So there are, ये तो अब इनकी कंपनी का एक सिनेरियो था जिसमें extended LAN कॉन्फ़िगर था, बट सर्विस चेनिंग के And बहुत then सारे here, सिनेरियोज ma'am, होते हैं। here V-Smart will understand that is on a single site, right? Yes. So that's the reason I told you that it is a control policy. तो कंट्रोल पॉलिसी कॉन्फ़िगर्ड होती है सर्विस चेनिंग के लिए, जिसके अंदर राउट इस तरीके से V-Smart सेंड करता है कि वो दोनों साइट सेम है। Exactly. और site 2 से while we are, when we'll do the trace route towards the any controller's IP, it will go via site 1 suppliers, right? Right. Okay. That I will check it. I'll check it and I'll let you know, ma'am. Right. वो आप चेक कर लेना, बाद में कभी भी चेक कर लेना, बट Yes, आपको it- सर्विस 100% चेनिंग समझ sure. में आ जाएगा अगर आप उसको प्रॉपर्ली ट्रेस करोगे, उसकी पॉलिसी चेक करोगे, कौन सी पॉलिसी ऐसा कर रही है। Actually तो क्या आपको ना वो मैम, समझ आना शुरू हो जाएगा। मतलब माय अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरे को VHS मतलब विप्टेला का जो है ना वो मतलब बहुत अच्छा यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होता है कमेंट वगैरह में, लेकिन हियर दे आर यूजिंग द CHS VHS devices for physical devices enterprise। वो लोग क्या कर रहे हैं, they are using the CHS devices, और हम लोग का कुछ management devices है that is on the Azure cloud, that is the Viptela, Viptela devices, वो cloud वो virtual devices है that they are using the Viptela,
और others they are near सारी about the CHs हैं कस्टमर सारी साइड पे। yes they are using the all CHs devices here. CHs ऐसे ही थोड़ा सा होता है। क्रिटिकल है मतलब मैम अगर पॉसिबल हो तो एक CS डिवाइस भी आप कर सको तो थोड़ा सा हमारे लिए सही होगा। आपके लिए तो सही होगा, बट CH डिवाइस का यहाँ पे प्रॉपर टेम्पलेट्स वगैरह नहीं होंगे। चलो मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, लेट मी सी। पहले हम जो हमारा रिक्वायर्ड और कंटेंट है पहले उसको ज्यादातर पूरा करते हैं। ज्यादातर मुझे भी ये सिनेरियो देखने को मिल रहा है, CS डिवाइसेस होते हैं और थोड़ा सा देखो वहाँ पे डाउट अगर आपने SD-WAN के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है ना, तो आप Viptela डिवाइसेस पे ही करो, क्योंकि CH डिवाइसेस का जो बिहेवियर है ना, वो आपको Viptela की तरह बिहेव करके नहीं दिखाएगा सारी CHs का। मैम CHs के जो मॉडल नंबर है वो चेंज होते जा रहे हैं, सिस्को न्यू डेवलपमेंट के साथ आती जा रही है, उसको DNAC इम्प्लीमेंट करना है, उसको SDA इम्प्लीमेंट करना है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए वो अपनी CH डिवाइस को मॉडिफाई करती जा रही है। हाँ, तो बस हम एक डिवाइस को अगर ऑनबोर्ड कर सकेंगे हाँ, ना। वो मैं दिखा दूंगी आपको एक डिवाइस, बट लेट्स कंप्लीट फर्स्ट द कंटेंट। ठीक है, कंटेंट कंप्लीट करते हैं हम पहले अपना, और उसके बाद फिर हम एक कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बोला, एक दिन TLOC एक्सटेंशन कर लेंगे, एक दिन CH डिवाइस भी कर लेंगे। अभी तो आपके पास लैब का एक्सेस रहेगा ना? हाँ, अभी तो कुछ दिन तो रहता ही है। हाँ, तुरंत तो आई बदल बिलीव नहीं सकता। काफी टाइम तक रहता है। जहां तक मुझे पता है कि काफी टाइम तक रहता है, बट आप लोग फिर से कोई एक जना, जैसे अब ओम प्रकाश जी आपकी तो ऑलरेडी माइग्रेट हो गई हुई है ना, तो आप चेक कर लेना, मैं बाकी सबको बोल देती हूँ। राइट, मैंने चेक कर लिया, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, सब कुछ है। हाँ हाँ, कॉन्फ़िगरेशन भी है। चलो देन डू वन थिंग, शेयर मैं योर साथ स्क्रीन। साथ ऑफिस के काम भी कर रहा हूँ, तो मे बी ओहो, आपको कंट्रोल दे दूं क्या, तो अच्छा अरे रहेगा। मैं कंट्रोल से काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पहले ही वो रिमोट है और फिर उसके बाद कंट्रोल से वो बहुत स्लो हो जाएगा। आप मेरे को पहले बोलते तो आई वुड हैव गिवन। मैं आपको ऑन करने को नहीं बोलती, हम किसी और को ऑन करने के लिए बोल देते, आपका लॉगिन किसी और को ऑन करने के लिए बोल देते। हाँ, ऐसे करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हु इज रेडी राइट नाउ? और फिर वो ऑन ऑफ में टाइम लगेगा। नहीं मैम, अगर URL लॉगिन करे तो वो सेम ही चीज वहाँ पे एक्सेस हो जाएगी, लैब्स तो ऑन ही है। अच्छा चलो ठीक है, Once and तो try। कौन एक्सेस करेगा? मैं एक्सेस कर दूंगा मैम। देबसिस, ओके Yes. फाइन। सो ओम प्रकाश जी, आप देबसिस के साथ शेयर कर दो अपने क्रेडेंशियल्स। ओके, 1 मोमेंट। और URL भी पिंग कर। Debasis, but make sure that after that you will not use it. meanwhile एक्चुअली मेरा एक ये है मतलब क्वेश्चन पूछो पूछो। क्वेश्चन नहीं, लास्ट मतलब कि आई आस्क्ड टू नेटवर्क किंग्स दैट कि अरवी मैम को बोलो कि स्टार्ट करने के लिए फॉर पालो अल्टो। हाँ, दे सेड नो स्टिल अरविंदर मैम का कोई ऐसा स्टार्ट बैच नहीं हो रहा है, मतलब यस मैम 48 का Fortinet के लिए मतलब स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी कोई पालो का कोई क्लास नहीं है करके। तो अभी मैंने एडमिट कर लिया है, मतलब मैंने पैसा डाल दिया है एडमिशन। मैं बोला कि जब भी कोई मैम स्टार्ट करेगा ना, प्लीज इन्फॉर्म मी, बट मेरे को अभी कोई क्लास में मतलब ऑनबोर्ड मत करना, ठीक है? अच्छा, आई विल वेट फॉर अनदर 3 or 4 months एटलीस्ट, बट मतलब मैंने एडमिशन का मतलब फीस डाल दिया है पूरा, ठीक है? लेकिन अच्छा। स्टिल मैंने उनको बोला कि मेरे को कोई पुराना वीडियोस दे दो, मैं गो थ्रू कर लेता हूँ पूरा क्लास का, वहाँ पे जितना 17 या 20 क्लासेस आर देयर, वो मेरे को दे दो, मैं थोड़ा गो थ्रू करता हूँ। मीनवाइल आई नीड द क्लास ओनली फॉर अरविंदर मैम करके बोला मैंने, तो बोला Okay. ओके। Okay. या प्रोग्रेस। तो आप शेयर कर रहे हैं ना स्क्रीन? हाँ, तो मुझे वो मैं पिंक बता ही कर, देता हूँ। मुझे लिंक पिंक करो, मैं लॉगिन लिंक करता हूँ। सेम ही है, लिंक सेम है। जो पोर्ट नंबर है ना 8083, वहाँ पे हाँ। आप 8094 लगा दो पोर्ट नंबर 80 8094। आप एक काम करो ओम प्रकाश जी, आप मेरे को शेयर कर दो, ठीक है? आई शेयर इट विद स्लैश करके लीगेसी लिखना, स्लैश लीगेसी LEGS। ठीक है। एंटर। टाइप नहीं हो सकता ओम प्रकाश जी? हाँ, और क्रेडेंशियल मैम शेयर कर रहा हूँ, 1 सेकंड। अच्छा,
तो आई वाज टेलिंग यू, आपने एनरोल कर लिया। देखो मेरा टारगेट क्या है कि मैं मतलब फुली ऑक्यूपाइड हूँ। उन्होंने मेरे को कॉल किया था चेक करने के लिए कि मैं कब क्लास ले सकती हूँ। उन्होंने मेरे को दोनों क्लासेस के लिए बोला, फोर्टिनेट की और इसकी पोलो अल्टो की। बट आई सेड कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेट मी फिनिश एटलीस्ट वन ऑफ द बैच एंड देन थोड़ा सा गैप देके फिर मैं स्टार्ट करूंगी। तो मेरे तो राइट मैम नाउ कौन अभी सा जैसे मैंने स्टार्ट कर आपको रहे हैं? बताया 3 बैचेस चल रहे हैं। एक तो सीसीएनए ले रही हूँ मैं, राइट। दूसरा आपका है ही है, और तीसरा मेरा न्यू एसडीवैन स्टार्ट किया है, राइट। अब 3 के बाद मेरे पास टाइम नहीं बचता, अपना घर भी देखना होता है और फिर फुल टाइम जॉब भी है। यू कैन थिंक अबाउट इट, राइट। इसके बाद टाइम नहीं बचता है बिल्कुल भी। तो मैं फैमिली को भी नहीं देख पा रही। दैट इज द रीजन आई एम सेइंग नो, राइट। बट मैं जल्दी शुरू करूंगी। मतलब यू कैन से दैट फेब्रुअरी को छोड़कर मार्च मिड तक मैं शुरू कर दूंगी। ओके मैम, अगर हम लोग एसडी वैन कर रहे हैं और तो एसडी वैन तो फोकस है हमारा डेटा सेंटर की तरफ रहेगा और नेटवर्क की तरफ, तो हमें पालो अल्टो या फिर फोर्टिनेट करने से सिक्योरिटी की तरफ हमें अगर मूव कर, तो ये तो लाइन ही अलग हो जाएगी फिर। नहीं 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 नहीं, आपको एज ए कंसल्टेंट काम करना है तो आपको सारी डिवाइसेस की नॉलेज होनी चाहिए। आप हाँ, अपने तो करियर ये को भी तो नेटवर्क में ग्रो करोगे ना। हम्म, तो अगर मैं मार्केट में देखती हूँ तो सिस्को के बाद पोलो अल्टो की फायरवॉल है जो मार्केट में है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी मैं सोचता हूँ जैसे कि पालो अल्टो अगर कर ले तो फोर्टिनेट भी समझ में आ ही जाएगा। ऑफ कोर्स समझ में आ जाएगा, बट इंटरफेस अलग अलग है उनके। जैसे आप वीएच और सीएच के इंटरफेस की बात कर रहे हो। वर्किंग भी एक जैसी होगी। यस, सारी फायरवॉल्स एक जैसे ही काम करती हैं, थोड़ा भाई बहुत स्लाइटली चेंज होता है। मैडम मुझे वो क्रेडेंशियल पिंग किए तो मैं लॉगिन करूंगा। हम्म, आपके ओके पास ओके, 1 मिनट। करो ओम प्रकाश जी, पहले फटाफट मैम से जैसे कि क्रेडेंशियल पिंग करो, हमारा टाइम हो रहा है। मैम जैसे कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन में आई एम वर्किंग इन हम्म एसडीएन फैब्रिक्स हियर, नियर अबाउट यहाँ पे 150 डिवाइसेस है। और ओम प्रकाश भाई जैसे बोल रहे थे ना कि एसडीएन में जैसे मैं काम कर रहा हूँ, पहले आई एम वर्किंग इन पालो ऑल्टो डिवाइसेस, ठीक है। और हम लोग का यहाँ पे और इन्फ्लो बॉक्स भी है, F5 एंड इन्फ्लो बॉक्स ऑल्सो। तो F5 एंड इन्फ्लो बॉक्स जनरली ये क्या होता है कि जो एज्योर का बंदा होता है या AWS का बंदा होता है वही देखता है, लेकिन मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को ही देखना पड़ रहा है, L2 एंड L3 टीम को। तो इन्फ्लोबॉक्स टोटली ऑन डिपेंड, टोटली डीएनएस का पार्ट हो गया ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, यूजर का ए रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड्स, ये सब रिकॉर्ड्स वहाँ पे बनाते हैं, रिमूव भी करते हैं, ये सब काम करते हैं एज पर द रिक्वेस्ट। जोन भी क्रिएट करते हैं इन्फ्लोबॉक्स में। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ एडिशनल काम तो मिल ही जाते हैं। देखो नॉर्मल सी बात है, तो कुछ एडिशनल काम करने से आपकी ही नॉलेज बढ़ती है, उसमें कोई नुकसान नहीं है अगर आप कोई एडिशनल काम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करके दे भी देते हो तो। यस यस यस। आई तो ऑलवेज से, अगर आपके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने काम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप उनको बोलो, दे शुड गिव यू एक्स्ट्रा राइट्स, दे शुड गिव यू एक्स्ट्रा डिवाइसेस, तो आपकी ही नॉलेज बढ़ेगी उससे। एग्जैक्टली। मिला क्या? नहीं भाई मुझे नहीं मिला। अरे ओम प्रकाश जी, मुझे दे दो ना जल्दी से टाइप करके आप, मैं दे ओके, दूंगी मैंने क्विकली। सेंड कर दिया है, शायद आपको ही चला गया है ये तो। अच्छा, मुझे सेंड किया है, ओके ठीक है ठीक है। किसको देना है? देबसिस आपको देना है ना? हाँ ठीक है देबसिस, आई एम गिविंग इट टू यू। So here you go. First is the username and the second is the password. Yes, Om Prakash? यस सर। स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं। हाँ ऑफ कोर्स, पहले लॉगिन कर ले रहे हैं तो फिर शेयर करते हैं। मैं यहाँ से लॉग आउट करूँ क्या? ये शायद 2 जगह लॉग इन भी नहीं कर सकते ना एक साथ। ये लॉग आउट हो ही गया मेरे पास। अच्छा मैम वो क्या बोलते हैं, शेयर करने के लिए एक्सेस दीजिए। ओके, लॉगिन हो गया देबसिस? हाँ हो गया।
हो गया perfect. चलो, let me give you now access to share it. Right. So it's good that right now we are doing a lot of discussion. आप लोगों के जो भी doubts हैं वो भी clear हो रहे हैं. ये पता नहीं ये राइट में क्यों है ऐसा। अब वो that's okay. वो हो रहा है. Perfectly fine. Let it be. हमें अब टोपोलॉजी तो हमें याद है, टोपोलॉजी का हमें करना ही क्या है अब तो सीधे हमें डायरेक्टली क्या करना है, डिवाइसेस को एक्सेस करना है. डिवाइसेस एक्सेस करो, आप वी मैनेज एक्सेस करो, वी स्मार्ट एक्सेस करो एंड यस विंडोज मशीन एक्सेस करो. GUI ओपन करूँ क्या? राइट, आपको GUI ओपन करना है. और हाँ, विंडो मशीन ओपन कर ले तो सही है, वहां से पुट्टी पे सब कुछ एक्सेसिबल हो जाए. सही चल रहा है ये तो. गुड. तो आपके 3 VHS ऑनबोर्डेड हैं, राइट? तो वी स्मार्ट भी है, वी बॉर्न भी है, वी मैनेज भी है. फाइन, परफेक्ट. तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जाना है टेम्पलेट्स में, राइट? थर्ड यस, यहाँ पर टेम्पलेट्स आते हैं आपके, राइट? अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अभी राइट नाउ ही हैज ऑलरेडी क्रिएटेड ए टेम्पलेट फॉर द VH. हम एक न्यू टेम्पलेट बनाएंगे, राइट? मैम एक बार इसको चेक कर लीजिए, ये सही है ना? हाँ, कोई बात नहीं, वो मैं चेक कर लूंगी बाद में, ठीक है? पहले हम एक न्यू टेम्पलेट बनाते हैं, राइट? हम टेम्पलेट किसका बनाएंगे? हम टेम्पलेट बनाएंगे CLI टेम्पलेट फ्रॉम फॉर द वी स्मार्ट, राइट? मेरे को बचे कुछ सारे कंसेप्ट मैं आपको यहाँ समझा दूंगी, राइट? तो डिवाइस मॉडल में हम सेलेक्ट करेंगे क्या? वी स्मार्ट. ओम प्रकाश, ये 100 सीरीज में आप कुछ डिफरेंट सेगमेंट में दिए हो क्या IP इसका? हाँ, इन्होंने IPs अलग दे रखे हैं. लेट इट बी, रहने दो. ऐसे ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप कोई भी IP एड्रेसेस रख सकते थे, वो तो मैंने आपको एक सिनेरियो दे दिया था. हाँ ठीक है मैम। मैं बता दूं, ऐसे वीबॉन्ड का वो IP है ऐसे 100. अभी हमें नहीं चाहिए. अभी रुको ओम प्रकाश जी, आप सबसे पहले डिवाइस सेलेक्ट करो वी स्मार्ट. पहले फोकस करते हैं टेम्पलेट की तरफ, ठीक है? वी स्मार्ट, राइट. अब टेम्पलेट का नाम रखो वी स्मार्ट अंडरस्कोर टेम्पलेट. चलो, इसको कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दो. चलो, अब हमें क्या करना है? अब हमें वी स्मार्ट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, राइट? अब वी स्मार्ट की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल मिनिमाइज दिस, विल गो टू द पुट्टी. नीचे ही है, राइट. अब यहाँ पे हमें वी स्मार्ट पे लॉग इन करना है. वी मैनेज पे है ऑलरेडी, वी शेल कर लेते हैं वी स्मार्ट पे. वी शेल, वी हेल हो गया. सो वी करके भी एंटर कर दोगे तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है, राइट? अब यहाँ पे मेरे को करना है SSH-L एडमिन. चलो, अब ओम प्रकाश जी वी स्मार्ट का IP एड्रेस बोलो. 100.1.1.2 1.1.3. 3 तो वी मैनेज का ही है. नहीं, मैं बता दूं, हाँ 1.1 है वीबॉन्ड का, 1.2 है वी मैनेज का, और 1.3 है वी स्मार्ट का. ओके, चलो डालो, 3 डालो. पासवर्ड एडमिन, राइट? वी आर एट वी स्मार्ट नाउ. आप करो शो रन. हाँ, करो मोर करके सारी कॉन्फ़िगरेशन देखो. चलो, अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कॉपी कर लो. सिस्टम से चलो, कॉपी कर ली. अब एक नोटपैड फाइल ओपन करो, नोटपैड पे पेस्ट कर दो इसको. चलो, अब स्क्रॉल अप करो, यहाँ से शो रन कमांड हटा दो.
ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो और इसको सेव कर लो। सबसे पहले कंट्रोल A कंट्रोल C कर दो, कंट्रोल A कंट्रोल C, राइट। अब फाइल को सेव कर दो किसी नाम से, फाइल को डेस्कटॉप पे सेव कर दो, vsmart कॉन्फ़िगरेशन। परफेक्ट, डन, ग्रेट। चलो अब इसको क्लोज कर दो, फाइल को, कॉपी तो है हमारी ऑलरेडी। अब वन वे इज आप यहाँ पे फाइल को पेस्ट कर दो जो आपने कॉपी कर रखी है ना। वन वे इज दिस, दैट कि आपने क्या किया, vsmart की टेम्पलेट बना ली। द सेकेंड वे इज व्हाट, आपके पास एक राइट साइड में जहाँ क्रिएट वेरिएबल था वहां सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन था कि आपने जो फाइल सेव किया डेस्कटॉप पे उस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट फाइल करके ऑप्ट कर दो, ठीक है। बट अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक चैलेंज आ रहा है, लास्ट में आपको vsmart हैश करके दिख रहा है, तो हमें वो रिमूव करना है। That is not the configuration. The last line, which is what, line number 60. Yes, right. तो second way is what, select file करके आप वो उस तरीके से भी आप फाइल सेलेक्ट कर सकते हो, और अदरवाइज आप ऐसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपने अब कॉन्फ़िगरेशन कॉपी पेस्ट कर ली, ऐड करो। पर मैम फाइल लेंगे तो उसमें भी हम लोग को पहले ही ये हैश और वो ऊपर वाले कमांड्स को हटा के हाँ, एग्जैक्ट वो हटा ऑप्शन। के सेव करना है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन ओके सेव करनी है, राइट। ओके ठीक है, ओके। अब हमने सिंपली यहाँ पे ऐड कर लिया। इसने मेरे को कुछ नहीं मांगा ना, इसने मेरे साथ क्या मांगा, कोई डिफरेंसेस नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगा, कुछ मांगा इसने नहीं। आप फिर से एक बार फिर से ट्राई करो, क्रिएट टेम्पलेट, vsmart CLI टेम्पलेट, सो vsmart, डिस्क्रिप्शन में अब नाम चेंज कर देना, vsmart टेम्पलेट 1 कर दो, नीचे से कॉपी करो, टेम्पलेट 1 कर दो। लास्ट में टेम्पलेट 1, राइट, सेम डिस्क्रिप्शन में डाल दो, राइट। अब सेलेक्ट फाइल करो, सेलेक्ट फाइल, वही वही गोई में ही जाओ, सेलेक्ट फाइल करो, हमारी ऑलरेडी सेलेक्टेड है वो। अच्छा, यू वांटेड टू रिमूव, मैं सोच रही थी बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ओके, सेव। चलो सेलेक्ट फाइल, राइट, इज इट ओके, वेट 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 वेट, ठीक है, इज इट ओके, सबने देख लिया कि क्या हो रहा है, यस। राइट। तो आप चाहे सेलेक्ट फाइल कर लो, चाहे डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लो, इट्स द सेम थिंग, ओनली जस्ट ओनली दैट आपको वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट। अब स्क्रॉल डाउन करके वेरीफाई करो सारी कॉन्फ़िगरेशन। इज इट फाइन, ठीक है। अब हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सो क्लिक ऑन ऐड, आपकी टेम्पलेट क्या हो गई, एडेड हो गई। तो आप देखो, सेम डिवाइस की हम टेम्पलेट क्या मल्टीपल टाइम्स बना सकते हैं, बना सकते हैं। दैट इज द वन थिंग, इट डज नॉट मीन कि हमने इस टेम्पलेट को बनाया और ये यूज हो गई, यूज तो नहीं हुई ना अभी, सिर्फ हमने सिर्फ इसको क्या कर रखा है, क्रिएट करके रखा है। समटाइम्स क्या होता है, जितने कंसल्टेंट होते हैं या आर्किटेक्ट होते हैं, उनको कंफ्यूजन होती है, तो वो धीरे धीरे करके कॉन्फ़िगरेशन करते रहते हैं, न्यू फीचर्स ऐड करते रहते हैं, राइट। तो दे कीप ऑन क्रिएटिंग मल्टीपल टेम्पलेट्स। तो अगर आप कभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के vManage पे लॉगिन करोगे तो आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स वहां पे दिखेंगी, राइट। तो किसने क्रिएट करी है, अपडेटेड बाय नेम, आपको यूजर नेम दिख जाएगा, राइट। डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में वो एक मीनिंगफुल नाम लिख देते हैं कि व्हाट इज द रीजन, दैट्स द रीजन दे हैव क्रिएटेड दिस, ओके। नाउ फीचर टेम्पलेट और डिवाइस अटैच टेम्पलेट वाले टैब को ना थोड़ा छोटा कर दो, और आई वांटेड टू शो यू द रेस्ट ऑफ द टैब्स। अरे नहीं नहीं, यहाँ नीचे यहीं पर, जैसे अभी आप फीचर टेम्पलेट 00 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इनको टैब को थोड़ा छोटा कर दो, यस। आगे का भी पार्ट देख लेंगे ना, आगे क्या आ रहा है। डिवाइस वाले को कर लो, किसी और को करके देख लो। नहीं तो नीचे का स्क्रॉल बार यूज कर लो, छोड़ो।
नीचे का स्क्रॉल बार यूज करो। सो राइट नाउ अगर आप देखोगे टेम्पलेट का स्टेटस क्या है, लास्ट अपडेटेड एंड टेम्पलेट स्टेटस इट इज इन सिंक, राइट। अब उसके बाद वहां पे आपके पास 3 डॉट्स हैं। तो जो हमने कोई भी एक वीस्मार्ट की टेम्पलेट क्रिएट करी है ना, वो 3 डॉट्स पे क्लिक करो और इसको क्या करना है, हमें अटैच डिवाइस कर देना है हमें, राइट। अब जब तक तो हमने टेम्पलेट क्रिएट किया था तब तक तो उसने मेरे को कुछ भी एज सच नहीं दिखाया था, राइट। जब मैंने अटैच करना है तो अटैच करते हुए वो मेरे को जितने वीस्मार्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो सारे यहाँ पर विजिबल होंगे, जितने भी वीस्मार्ट होंगे, मे बी 1 है, मोर देन 1 है, वो सारे वीस्मार्ट मेरे को विजिबल होंगे। अब यहाँ से हमें इसे मूव करना है एरो बटन से सिलेक्टेड डिवाइस के अंदर, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अटैच पे क्लिक करेंगे। जब हम यहाँ पे अटैच पे क्लिक करते हैं तो मेरे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो के अंदर क्या है, 2 पेन्स नजर आ रहे हैं मेरे को, एक लेफ्ट पेन और एक राइट पेन। तो लेफ्ट पेन में मेरे पास डिवाइस का सीरियल नंबर विजिबल हो रहा है, देख रहे हो, वीस्मार्ट 33 एंड उसका सीरियल नंबर ऊपर आ रहा है। सो वी विल सेलेक्ट दिस डिवाइस एंड अब यहाँ पे मुझे क्या दिखेगा, कॉन्फ़िगरेशन का प्रीव्यू दिखेगा और कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंसेस दिखेंगे, बिकॉज राइट नाउ वी आर गोइंग टू अटैच इट। तो इट विल शो यू दैट दिस विल बी द इम्पैक्ट इन केस इफ यू हैव अटैच दिस पर्टिकुलर डिवाइस विद द टेम्पलेट, ये इम्पैक्ट होगा। तो आप कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस पे जाओ, सेकेंड पैन के अंदर प्रीव्यू के साथ टैब आपका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंस। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको डिफरेंसेस विजिबल हो रहे हैं, आपको पिंक कलर से देखो चेसी नंबर दिख गया, राइट। सो इस तरीके से आपको डिफरेंसेस विजिबल हो रहे हैं। ये वो पैरामीटर्स हैं जो हमने कॉन्फ़िगर नहीं किए, जो बाय डिफॉल्ट होते हैं। अब आपके पास एक ऊपर ब्लू कलर का बटन है, दैट इज व्हाट साइड बाय साइड डिफरेंस। सो क्लिक करो उसको, साइड बाय साइड डिफरेंस। तो अगर आप देखोगे लोकल कॉन्फ़िगरेशन और न्यू कॉन्फ़िगरेशन के डिफरेंसेस है। ये आपकी लोकल कॉन्फ़िगरेशन है जो ऑलरेडी डिवाइस के अंदर है, एज एन व्हाट स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, राइट। और वेयर इन व्हाट वी वुड लाइक टू कॉन्फ़िगर इट, दैट इज हियर। तो ये वाले जो अभी हमें डिफरेंसेस दिख रहे हैं, दैट इज द बेसिक डिफरेंस जो हमें कॉन्फ़िगर नहीं करने होते, बाय डिफॉल्ट होते हैं। बट इन लाइव और इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आपके पास कुछ ऐसे डिफरेंसेस नजर आ जाएं आपको। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अटैचिंग ए डिवाइस टू द टेम्पलेट। आर वी ओके? तो अभी तो ये ऐसे डिफरेंसेस हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लिजिबल डिफरेंसेस हैं जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके तो हमें ऐसे साइड बाय साइड पूरी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन विजिबल हो जाती है, तो आप देख सकते हो। आर वी ओके? कोई डाउट यहाँ पे? हमने टेम्पलेट क्रिएट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमने क्या यूज किया है, डिवाइस को अटैच करने का स्टेप यूज किया। तो लास्ट क्लास में मैंने सिर्फ आपको टेम्पलेट क्रिएशन बताया था, टेम्पलेट अटैच करना नहीं बताया था। इट मींस टेम्पलेट को यूज करना नहीं बताया था, राइट। सो दिस इज द मेथड व्हिच विल बी यूजिंग टू use the template. Okay, now we will click on configure device. हमने देख लिया and we found that there is no as such major device challenges. So configure device का बटन यहीं पे अवेलेबल है, नीचे डाउन ब्लू कलर का बटन है। ये इंटेंट मैम क्या ये है? रोल बैक का क्या है मैम, लेफ्ट साइड में? वो सब बताऊंगी, अभी थोड़ा वेट करो। पहले हम अभी सिंपली इस पे करते हैं configure devices, राइट। पहले कंसेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं, फिर एडिशनल फीचर्स को देखेंगे। अब हमने कॉन्फ़िगर डिवाइस पे जैसे ही क्लिक किया, इट वेंट इनटू व्हाट, सम प्रोसेस। और क्या प्रोसेस हो रहा है, कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस विद CLI टेम्पलेट, generating configuration from the template, checking and creating device in vManage, devices online, updating device configuration in vManage, pushing configuration to the device and template successfully attached to the device. So जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन थी वो पुश हो गई vManage से, कहां पर, vSmart पर पुश हो गई, राइट। अब जब वो vSmart पे पुश हो गई तो वो कैसे पुश हुई, it is pushed through the API. Yes. It is pushed through the API. जो हमने netconf enable किया था ना, this is the netconf use, right? अब हम फिर से वापस आएंगे वहां पे कॉन्फ़िगरेशन टेम्पलेट्स में। स्लो टेम्पलेट्स, राइट। यहाँ अगर आप देखोगे डिवाइस अटैच में आपके पास आ गया, वन डिवाइस इज अटैच्ड,
देख सकते हो टेम्पलेट के आगे आपका आ गया वन डिवाइस इज अटैच। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको डिवाइस का नाम, सिस्टम आईपी, साइट आईडी और चैसी नंबर विजिबल हो जाएगा कि दिस इज द डिवाइस व्हिच इज अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट। आर वी ओके? अब ये जो हमने vSmart के साथ किया है ना, दिस इज व्हाट माय प्री रिक्विजिट्स फॉर द पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। अगर मेरे को कोई भी पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करनी है व्हिच इज रिलेटेड टू कंट्रोल, मेरा vSmart क्या होना चाहिए? वी मैनेज्ड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मैनेज्ड बाय डिवाइस इटसेल्फ, इट मींस इन द CLI मोड, राइट? एक तो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारी डिवाइस क्या हो गई, अटैच हो गई, और वी कैन सी दैट विद दिस पर्टिकुलर टेम्पलेट दिस डिवाइस इज अटैच्ड। सेकंड पैरामीटर जो हमने देखना है वो हमने देखना है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाके डिवाइसेस, मैम 1 मिनट, कॉल आ रहा है। राइट? तो मैम यहाँ पे जो हम लोग का मतलब अभी फर्स्ट वहाँ पे CLI मोड में ही दिखेगा ना, मतलब नहीं इन- नहीं नहीं, वही दिखाने जा रही हूँ कि वो क्या दिखेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। हम कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस में जाके देखेंगे कि हमें क्या विजिबल हो रहा है मेरा vSmart ऐप। ओके ओके ठीक है। सो ही नीड ए पहले मिनट। पहले क्या दिखा रहा था? CLI मोड में दिखा रहा था, राइट? पहले राइट CLI दिखा रहा था। तो ओके, अगर सपोज मतलब यहाँ पे हम लोग टेम्पलेट कुछ पुश नहीं करते तो वहां से डायरेक्ट CLI से भी मैनेज मोड कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे। ओके डिवाइस आपकी vManage मोड में तभी आती है जब vManage इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द कॉन्फ़िगरेशन, और vManage टेम्पलेट्स के थ्रू ही कॉन्फ़िगरेशन करता है, डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं करता vManage। अगर अच्छा, हमने डिवाइस जो vManage VS डिवाइसेस ऑनबोर्ड हो गए और उनके कंट्रोल कनेक्शन सब दिख रहे हैं मुझे, तो क्या हम मान सकते हैं कि वो डिवाइसेस vManaged है? नो, नहीं। जब तक हम उन्हें क्या नहीं कर देते, टेम्पलेट के साथ अटैच नहीं कर देते, तब तक वो vManage मैनेज्ड नहीं है। Okay. मॉनिटरिंग हो रही है उनकी, बट vManage उनको मैनेज नहीं कर सकता। vManage उनको मैनेज तभी करेगा जब पूरा फुल कंट्रोल हम vManage को देंगे, और फुल कंट्रोल का मतलब हम कॉन्फ़िगरेशन राइट्स भी vManage को देंगे। दैट मींस वो अभी CLI मोड में है, राइट मैडम? राइट राइट। तो अभी अगर डिवाइसेस आर suppose मेरा मैनेज्ड कुछ बाय vManage बट दे आर इन CLI मोड। तो Okay. देवाशीष, कैन वी गो? आर यू बैक? So just give me a second, hold your questions. Okay. Let me complete the concept and then you can bring all your question, or maybe meanwhile आप क्या करो, चैट में डाल दो। अगर आपको लग रहा है ना आप भूल जाओगे तो write it down there in the chat. और नहीं तो Okay, चैट में भी नहीं डालना होता तो बेस्ट वे इज व्हाट, अपने पास एक नोटपैड ओपन किया, फटाफट से वहां पे लिख लिया। आप नोटबुक लेके बैठे हो, नोटपैड लेके बैठे हो, अगर आप फोन लेके बैठे हो तो आप वहां पे कर लो। अब ये कौन कर रहा है एक्सेस? अगर देवाशीष इज नॉट देयर देन मैम मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ तो ये क्यों मूव हो रहा है? मैं ये थोड़ा सा डाउट में हूँ। आपके पास क्यों एक्सेस है इसका? देवाशीष, लेट द देवाशीष काम। अगर आपके पास एक्सेस है तो करो, कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस, यस कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेस। अब यहाँ पर जब डिवाइसेस में गए, ये तो हमारी वी एजेस है, अब हमें कहाँ जाना है? कंट्रोलर्स में। अरे सेकंड टैब अच्छा ऊपर ऊपर ऊपर, यस। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इसका मोड चेंज हो गया। क्या? vSmart के सामने देखो मोड क्या है इसका, vSmart template 1. वी मोड हो गया vManage, और vManage। टेम्पलेट भी आगे की कौन सी टेम्पलेट असाइंड है इसको, स्मार्ट टेम्पलेट 1। राइट? आप इसको ये जो नोटिफिकेशन आया है ये इसको हटाओ। अच्छा मेरे स्क्रीन पर है ये नोटिफिकेशन, तो नहीं आप ही की स्क्रीन पर है ये डेट वाला नोटिफिकेशन, इसको क्लियर कर दो। नहीं मैम, डेट वाला ये Calendar कैलेंडर Mumbai. कैलेंडर देवाशीष की, पे नहीं है, देवाशीष ने शेयर किया। हाँ तो इसको मिनिमाइज कर दो, आपके पास कंट्रोल है, कर दो। मुझे ना बस ये दिख रहा है, ये अच्छा आपको सिर्फ आपका वो दिख रहा है बस मुझे रैक, वो डिवाइस दिख रही है। आपके पास सिर्फ रैक का है। चलो ठीक है, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल वाला बार मूव करो, लेट्स सी इट व्हाट एल्स इज अवेलेबल देयर। ओके। नीचे वाला हॉरिजॉन्टल बार मूव करो।
और करो, एंड तक लेकर आओ और लास्ट तक लेके जाओ, लास्ट में 3 बटन से वहां तक लेके जाओ। अभी नहीं जा रहा है। अच्छा हो गया, वो 3 डॉट्स नहीं दिख रहे बिकॉज ऑफ टाइम नोटिफिकेशन। अच्छा नहीं दिख रहा मैम, मैं ऐसे कर ले, ऐसे करूँ तो दिखेगा। अब दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं। अरे आपके पास नहीं है वो राइट्स। आप शेयर स्क्रीन नहीं देख रहे, आप अपना रैक ही देख रहे हो, आपने अपना रैक भी ओपन किया हुआ है। दैट्स द रीजन इट इज, आप जूम पे नहीं देख रहे हो, राइट? मैं जूम पे ही देख रहा हूँ मैम। तो आपको फिर क्यों नहीं विजिबल हो रही फुल स्क्रीन? चलो अभी कुछ मत ओपन करो, लेट इट बी लाइक दिस। जूम पे, एक लेट सेकंड, हिम कम बैक। एक सेकंड। ओहो मैम, मुझे वो डिवाइस मेरा वो रैक एक्सेसिबल है अभी भी। मैं तभी तो कह रही हूँ आप अपने रैक पे काम कर रहे हो। Sorry मैम, That's perfectly fine. So what we did, Devas, is we went to configuration devices and controllers, right? On the controllers, we have seen that vManage mode is now changed to vManage, and there is a template assigned to it. That is what? Template 1, right? Now let's click onto the 3 dots, which is there in front of vSmart, right? So if we click onto these 3 dots, तो अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, लोकल कॉन्फ़िगरेशन, टेम्पलेट्स के लोग दिख रहे हैं आपको। तो इन केस अगर टेम्पलेट में कोई चेंजेस होते हैं तो यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स के लोग विजिबल हो जाएंगे। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी आपको टेम्पलेट्स का एक्सेस ना हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, बट टेम्पलेट्स में क्या क्या चेंजेस हुए हैं ना, वो चेंजेस आपको यहाँ पे टेम्पलेट लोग्स में विजिबल हो जाते हैं। तो अगर हम इसको टेम्पलेट लोग को ओपन करते हैं, राइट नाउ दो हमें कोई लॉग्स नहीं दिखेंगे, ठीक है? तो आपको ये राइट नाउ विजिबल होगा कि कब कब कॉन्फ़िगरेशन जनरेट हुई, कैसे कैसे अपडेट हुई, ठीक है? डिवाइस आपकी ऑनलाइन हुई, जो हमने जब हमने अभी टेम्पलेट अटैच की थी, जो हमें लॉग्स दिखे थे ना, वो सारे लॉग्स यहाँ पर हैं आपके, राइट? उसके बाद टेम्पलेट में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे लॉग्स में विजिबल हो जाएंगे। इज इट फाइन? कि अगर किसी को ट्रबल शूटिंग करनी है, ट्रबल शूटिंग में क्या कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हुए हैं, वो कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स में, टेम्पलेट लोग्स में विजिबल होते हैं। आर वी ओके? yes मैम। तो दिस इज व्हाट मैं वो- हेल्पफुल फॉर द ट्रबल शूटिंग एज वेल। जब हम एक डिवाइस को टेम्पलेट के साथ अटैच कर देते हैं, तो किसी ने अगर मिसकॉन्फिगरली कोई और टेम्पलेट अटैच कर दी, तो आपको यहाँ पे लॉग में विजिबल हो जाएगा कि व्हाट एक्शन हैज बीन टेकन प्रीवियसली, दैट्स द रीजन दिस डिवाइस इज व्हाट क्रिएटिंग ए प्रॉब्लम। चलो अब आप मैम अपने वो क्वेश्चंस पूछो। मैं वो मोड में vManage क्यों दिखा रहा है? मोड का मतलब क्या मतलब उसमें? There are 2 modes, one is CLI, another one is vManage, right? Okay. What is CLI mode? It means आप डिवाइस का एक्सेस Locally configuration किया locally हमने। कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। What is Okay. vManage? It means now everything will be managed by vManage. You Got cannot it. configure anything with the CLI mode. Now we'll Okay. go back to the putty. Devasis, go back to the putty जहाँ पे हमने vSmart को एक्सेस ले रखा है। अब यहाँ पे जाओ और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम आईपी चेंज कर दो। सिस्टम आईपी कर दो 202020। नहीं मैम, ये अरे रुक जाओ ना ओम प्रकाश जी, ओके। एंटर करो, कमिट कर दो जरा। क्या आया मैसेज? CLI is About- not allowed. Configuration through CLI is not allowed. This is the benefit of what? vManage चेक mode. करना चाह रहा था। Are we okay? तभी मैंने बोला डाल दो Okay. आप कमिट कर ही नहीं सकते, कमिट नहीं करोगे तो इट विल नॉट बी इम्पैक्ट, राइट। राइट? सो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट। में vManage रहता है हमेशा कि CLI रहता है? ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है कि वो क्या, किस तरीके से वो एक्सेस राइट्स देना चाहते हैं अपने यूजर्स को। यूजर्स का मतलब जो डिवाइसेस को मैनेज करेंगे, मैम हमें तो मतलब अपने vManage नेटवर्क का, एडमिनिस्ट्रेटर्स को क्या एक्सेस राइट देना चाहते हैं हमें वो। ना vManage का एक्सेस ही नहीं दिया है। L3 आपको को है, वो चेक कर सकते हैं, तो L3 के पास है। तो इसका मतलब आपके पास सिर्फ अंडरले और ओवरले की बस ट्रबल शूटिंग का है एक्सेस। तो बाकी लेवल 3 है उनके पास है, तो वो चेक कर सकते हैं।
उनके ऊपर जो क्लाइंट है उनकी अपनी नेटवर्किंग टीम है, तो जनरली वी मैनेज का एक्सेस दिया जाता है, बट वी मैनेज का एक्सेस लिमिटेड दिया जाता है, सिर्फ ऑपरेटर मोड में दिया जाता है कि आप उन डिवाइसेस को क्या करो, मॉनिटर कर सको। दैट इज द एक्चुअल प्रिंसिपल। वो भी लेवल तो 1 और लेवल 2 को एक्सेस मिलता है वी मैनेज का, बट सिर्फ मॉनिटरिंग एक्सेस मिलता है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन देख नहीं सकते, कॉन्फ़िगरेशन व्यू नहीं कर सकते, टेम्पलेट्स नहीं देख सकते, ओनली लिमिटेड एक्सेस दिया जाता है। ओके, आर कॉन्फ़िगरेशन वी भी नहीं ओके देखने नाउ? के लिए। हमें टेम्पलेट्स का बेनिफिट क्लियर हो गया। Yeah, ma'am. डिवाइस कहाँ चली गई? वी मैनेज मोड में। अब जितने भी चेंजेस होंगे वी मैनेज की टेम्पलेट के अंदर ही होंगे। आप और चेंजेस वो कैसे करते हो? आप नई टेम्पलेट क्रिएट करते हो, उस टेम्पलेट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हो, और दैट टेम्पलेट यू विल बी एडिंग इट टू द डिवाइस, राइट? और टेम्पलेट लोग क्रिएट होते हैं सो दैट आपको प्रीवियस एक्शंस विजिबल हों कि क्या क्या प्रीवियस एक्शन हुआ है। एंड दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। अगर आपको पॉलिसीज कॉन्फ़िगर करनी है, बी इट ऑन टू दी वी स्मार्ट और बी इट ऑन टू दी एज डिवाइसेस, आपकी डिवाइसेस क्या होनी चाहिए? वी मैनेज मोड में होनी चाहिए। अगर आपकी डिवाइसेस वी मैनेज मोड में नहीं है तो आप पॉलिसीज कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। आर वी ओके? ओके मैम, यहाँ पे जो आप पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की बात कर रहे हैं हम, तो वो एक्चुअली एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग है ना? नहीं, हर तरह की है, कंट्रोल, डेटा एंड एप्लीकेशन अवेयर, हर तरह की है। ओके ओके, जब हम पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की बात करते हैं तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, तो पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हर तरीके से होती है। आर वी ओके नाउ विद दिस? अब टेम्पलेट में मेरे को कुछ बताने के लिए है आपको, टेम्पलेट क्रिएट कैसे करना है, उसको वेरिएबल टेम्पलेट कैसे बनाना है, उसको फीचर टेम्पलेट कैसे बनाना है, उसको यूज कैसे करना है। इज एवरीथिंग ओके विद यू गाइस? बाकी आपके पास आपका कोड होगा तो यू कैन डू प्रैक्टिस अ लॉट। अरे फीचर Right? टेम्पलेट मुझे समझा नहीं था मैडम, ये भी समझ गया आज जो हमने किया ना कि टेम्पलेट्स क्रिएट किए, फिर टेम्पलेट्स अप्लाई किया, फिर वो कमांड मोड से वी मैनेज चढ़ा गया। फीचर मतलब क्या होता है मैडम? फीचर टेम्पलेट में क्या होता है कि आपने सिर्फ एक फीचर कॉन्फ़िगर किया, आपने सिर्फ ओएमपी के लिए क्रिएट की फीचर टेम्पलेट, और आपने सिर्फ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए की टेम्पलेट। आपको ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सारे डिवाइसेस पे सेम ही करनी होती है, सिर्फ क्या चेंजेस होते हैं, वैल्यूज चेंज होती है, होस्ट नेम की वैल्यू चेंज हो जाती है, सिस्टम आईपी की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आपने एक फीचर टेम्पलेट बनाई, उसको वेरिएबल कर दिया और वो कॉन्फ़िगर करके रख दी, राइट? ओके और या आप ये कह सकते हो कि आपने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की एक टेम्पलेट बना दी जिसके अंदर आपने कौन कौन से फीचर ऐड किए, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के, राइट? और सर्टिफिकेट की कॉन्फ़िगरेशन के। दो सर्टिफिकेट की कॉन्फ़िगरेशन की टेम्पलेट कभी नहीं बनती, सर्टिफिकेट आपको क्या करने पड़ते हैं, मैनुअली ही करने पड़ते हैं। तो आपने एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करी जिसके अंदर आपकी दो चीजें हुई, एक तो इंटरफेस और एक सिस्टम। तो ये आपकी फीचर टेम्पलेट होगी, और इस फीचर टेम्पलेट को आपने क्या कर दिया, बाद में कॉल कर लिया एक फुल टेम्पलेट के अंदर, CLI टेम्पलेट के अंदर, राइट? ओके सो आप वेरियस मेथड्स होते हैं, आप उनको एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करने के बाद देन यू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम मी इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? आज और कल आप पूरा एक्सप्लोर करो टेम्पलेट्स को, और एक्सप्लोर करने के बाद आप अपने क्वेश्चन कब पूछोगे मुझसे, नेक्स्ट वीक में। आर वी ओके? यस मैम राइट? यस तो आप अपने एंड पे भी एक्सप्लोर करोगे, लैब में भी एक्सप्लोर करोगे, इंटरनेट से भी एक्सप्लोर करोगे, और उसके अलावा कहाँ से एक्सप्लोर करोगे, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ़िगर है और आपके पास एक्सेस है तो आप वहां पे भी एक्सप्लोर करो, एंड देन स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस। आर वी ओके? तो इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, जो मैंने आपको समझाया है, इसके अलावा फीचर्स, इसके अलावा टेम्पलेट तो कुछ भी नहीं है। और टेम्पलेट इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट for a device to be managed by vmanage so that we can configure the policies. Else we can't implement the policies onto the devices. Right? So should I move now with the policies theory? मैम मेरा क्लास क्वेश्चन है कि सपोज मेरा CLI मोड में है एज डिवाइस, और जैसे कि अभी ये लैब में CLI मोड में है, ठीक है, मैंने अभी तक कुछ पुश नहीं किया, वी मैनेज से कुछ फाइल मतलब कुछ डिवाइस अटैच नहीं किया, तो अभी CLI मोड में है वो। तो हाँ, मैं पॉलिसीज नहीं पुश, मतलब मैं पॉलिसीज को नहीं पुश कर सकता, राइट, फ्रॉम वी मैनेज, नहीं बिकॉज कर सकते। वो वी मैनेज नहीं है।
ओके राइट। अगर मेरे को कुछ कॉन्फ़िगरेशन या कुछ डिवाइस अटैच ही नहीं करना है, सपोज मैंने क्या किया, CLI से कॉन्फ़िगरेशन किया एज डिवाइसेस का, तो मेरे को अभी पॉलिसी सी करना है, मेरे को कोई चेंजेस नहीं करना है CLI में, मतलब कुछ कॉन्फ़िगरेशन लेवल में चेंजेस नहीं करना है मेरे को अभी। सपोज मैंने क्या किया, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन किया, अंडरले का VPN 0 का कॉन्फ़िगरेशन किया, सर्टिफिकेट कर लिया, डिवाइस ऑनबोर्ड हो गया, मेरा vManage से डिवाइस दिख रहा है मेरे को, अभी मेरे को पॉलिसी पुश करना है, तो मेरे को कुछ कॉन्फ़िगरेशन अंडरले या ओवरले के लिए डिवाइस में चेंज नहीं करना है, तो क्या मैं नहीं कर सकता, राइट? नहीं कर सकते। और मैं CLI से vManage भी मोड चेंज भी नहीं कर सकते? चेंज कर सकते हो आप, मैं डायरेक्ट चेंज कर सकता हूँ या अपने डिवाइस ऑप्शन में जाके? डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, आपको टेम्पलेट क्रिएट करके टेम्पलेट अटैच करनी पड़ेगी। तभी तो मैंने आपको क्या दिखाया कि अच्छा, आप मतलब सेम डायरेक्टली टू सेम कॉपी कॉन्फ़िगरेशन करके, कॉपी करो और उसी की टेम्पलेट बना दो। अच्छा सेम टू सेम कॉपी करके अगर कुछ चेंजेस करना हो या नहीं हो, जस्ट सेम टू सेम कॉपी करके उसको पुश कर दूंगा। राइट। ओके ओके, दैट्स गुड। मैडम अगर ये आपको रिवर्ट लगता है कि आपको डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं करने, सिर्फ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, हाँ हाँ, सिर्फ इसीलिए मैं पॉलिसी बोल रहा हूँ। इंप्लीमेंट करनी है, कोई चेंजेस नहीं करने, तो आप डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी करो, टेम्पलेट क्रिएट करो और अटैच कर दो, दैट्स इट, खत्म। मैडम ये रोल बैक होगा क्या फिर से अभी जो हाँ, मोड रोल है? बैक हो सकता है, अच्छा, तभी तो रोल मैंने बैक। बोला आपको क्या करो, आप एक्सप्लोर करो। मतलब वंस द मोड हैज बीन चेंज टू vManage, उसके बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वी हैव टू यूज द टेम्पलेट, देयर इज ओनली वन। यस, वी हैव टू यूज द टेम्पलेट। और अदरवाइज क्या करो, टेम्पलेट को क्या करो, डी अटैच करो, CLI मोड में क्या करो, फिर से कॉन्फ़िगरेशन करो, दोबारा से न्यू टेम्पलेट क्रिएट करो और फिर अटैच कर दो डिवाइस को, देन पुश द पॉलिसी। मैं while pushing the template, मान लीजिए कि मेरा कोई मतलब सिंटेक्स एरर है, तो वो इसमें एरर आ जाएगा उसी टाइम या फिर हाँ, फेल हो जाएगा? इसमें एरर आ जाएगा। ओके इसमें अगर कोई सिंटेक्स एरर है तो इसमें एरर आ जाएगा। ओके और अगर आपने वेरिएबल टेम्पलेट क्रिएट करी है तो जब आप इसको अटैच करने लगोगे तो वो वेरिएबल की वैल्यूज मांगेगा आपसे। गॉट इट। मैडम इसी से आप लोग ऑनबोर्ड कर सकते हैं क्या नया डिवाइस को? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो आप नए डिवाइस को ऑनबोर्ड, बट नए डिवाइस को ऑनबोर्ड करने की क्या रिक्वायरमेंट होती है? बेसिक अंडरले तो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, अंडरले कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, राइट, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद एडवांस कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम टेम्पलेट्स को यूज करते हैं। तभी मैंने जब आपको बेसिकली बता रही थी vManage का काम क्या होता है, तब मैंने लिखा था ना एडवांस कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डन थ्रू vManage। याद आया? दैट इज राइट। मतलब एक Right? मतलब प्लेन vManage को वी कांट यस, ऑनबोर्ड प्लेन VH को वी कैन नॉट ऑनबोर्ड थ्रू vManage, राइट। कर सकते हैं जब VH क्लाउड हो, तो VH क्लाउड की कंडीशन में क्या होता है, VH क्लाउड की कंडीशन में आपका vManage क्या कंसीडर होता है, एज ए सर्वर कंसीडर होता है। लेट्स टेक, आपकी एक साइट है जहां पर आपको सिर्फ क्या चाहिए, आपकी फिजिकल डिवाइस नहीं है, आपके पास क्या है, एक वर्चुअल सर्वर है, उस सर्वर के ऊपर आपको आपने VH क्लाउड इंस्टॉल करनी है। अब VH क्लाउड का सॉफ्टवेयर कहां पर अवेलेबल है? मैनुअल CD वगैरह में तो नहीं होगा ना आपके पास, बरोबर। तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ पे होगा, vManage के पास होगा। तो इनिशियली जब आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी साइट पर, तो उस वर्चुअल मशीन की आपको vManage के साथ अंडरले की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है। जैसे ही अंडरले की कनेक्टिविटी अप होगी तो vManage से iOS अपलोड होगा, उस डिवाइस पे iOS अपलोड होगा, तो वो डिवाइस क्या बन जाएगी, VH बन जाएगी। और जब वो डिवाइस VH बन जाएगी तो उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या होगी, पुश होगी vManage से। तो वो एक पूरा कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियोज होता है जिसके लिए हमें क्या करना होता है, ऑटोमेशन कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। तो वो सिर्फ आपका वेबटेला का कंसेप्ट नहीं यूज होता, उसके लिए आपको पाइथन की स्क्रिप्ट होनी चाहिए और उसके साथ साथ क्या नाम है दूसरी लैंग्वेज का, पाइथन के साथ हम क्या यूज करते हैं, एनसिबल। एनसिबल, राइट। एनसिबल पाइथन के थ्रू स्क्रिप्ट बनाते हैं और एनसिबल के थ्रू प्लेबुक बनाते हैं स्क्रिप्ट्स का। तो वो प्लेबुक क्या बनता है एनसिबल के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप कैसे कौन कौन सी स्क्रिप्ट फॉलो होगी।
That's the method is used there in the organization. So तभी हमें क्या आता है कि हमें automation required है further. Are we okay? तभी कहते हैं कि अगर आपको बढ़ना है आगे तो आपको क्या चाहिए, ऑटोमेशन भी आनी चाहिए. So, ma'am, Python is necessary for SD-WAN, means to grow the career in this one. No, it's not necessary because you are working as a network administrator, तो आपको जरूरत नहीं है. बट अगर आप बैकएंड पे डिजाइनर की तरह काम करते हो तो आपको पाइथन और एनसिबल दोनों आनी चाहिए. नहीं आती है तो ऑर्गेनाइजेशन में रहते रहते एक ही बंदे को तो क्रिएट करनी होती है वो स्क्रिप्ट. Okay. जो भी पहले फर्स्ट आर्किटेक्ट होता है जो डिप्लॉय करता है ना नेटवर्क को, वो स्क्रिप्ट बना के छोड़ देता है. Okay. और उसके बाद बाकी सब तो उनको यूज करते हैं. दैट्स इट. तो अगर आपको फुल्ली इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बनना है, कंसल्टेंसी की सर्विसेज ऑफर करनी है ऑर्गेनाइजेशन को, देन यू शुड हैव ए रिसोर्स. ये आप क्या देख रहे हो? आपकी स्क्रीन शेयर है. Okay, ma'am. Sorry. No problem. हाँ. तो आर वी ओके नाउ विद द टेम्पलेट? लेट मी नो आपको आगे मूव करना है आज और या फिर हम कल से स्टार्ट करें पॉलिसीज. मैम पॉलिसीज के लिए बोलो पॉलिसीज के लिए. नहीं, मेरा कुछ और डाउट मुझे कुछ और पूछना था. पूछो. प्लीज. तो मैम अगर मुझे ये पूछना था ना कि मैम आपने प्रीवियस क्लास में बताया था कि हम जेटीपी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. तो क्या मैम आप थोड़ा सा मतलब उसके बारे में बताएंगे फिर जेटीपी का? मैंने बोला ना आपको हम डिवाइस को ऑनबोर्ड करेंगे. लेट मी फिनिश पॉलिसी बेस्ड राउटिंग. ओके. ठीक है. उसके बाद आपके जितने बचे हुए डाउट्स हैं मैं सारे क्लियर कर दूंगी. ठीक है. मैं कल शुरू कर दूंगी पॉलिसी बेस्ड राउटिंग. कल पॉलिसी बेस्ड राउटिंग शुरू करने के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद मतलब सबका मतलब एक इंफॉर्मेशन पास करना चाहता हूँ मैं, तो वो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद भी मैं कर सकता हूँ मतलब. और वो मतलब so what we are doing it or now over here. क्या मैं बता रही थी आपको? Yes, let me take a screen capture and send it to them so that आपका जो है ना पोर्ट माइग्रेट हो जाए. मैम यदि पोर्ट माइग्रेट हो जाएगा तो फिर हम लोग ईमेल भी आ जाएगा ना कि पोर्ट नंबर हम लोग का माइग्रेट हो गया, क्योंकि अभी हम लोग जो पोर्ट नंबर यूज कर दैट इज डिफरेंट. और ये राइट. मैं उनको बोलूंगी कि आपको मेल कर दे. ओके मैम, दैट विल बी फाइन सो दैट वी कैन डू प्रैक्टिस. तो मैम ये जो मैं कॉन्फ़िगरेशन करके रखा अभी 8083 में, दैट विल ऑल बी रिमूव्ड राइट? यस, ऑल विल बी रिमूव्ड. अच्छा, तो नया पोर्ट में जब जाएगा तो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ना? क्योंकि ऑलरेडी 8 to 9 times I have completed that. कुमार भाई वो पूरा नया पोर्ट है तो it will need to start from scratch. हाँ वही तो है. चलो कोई बात नहीं, दैट्स ओके. मैं इन लोगों के साथ ये शेयर कर दूंगी आप लोगों का. राइट. अब आप में से कोई ऐसा तो नहीं है जो आज की क्लास में नहीं है, बिकॉज बाकी सब लोग तो धीरे धीरे करके क्या हो गए हैं, बैकआउट हो गए हैं, वो बाद में ज्वाइन करेंगे एसडी वैन. मे बी उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू, यू कैन से दैट उनके वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, और उनके पास क्या चैलेंजेस है, टाइम मिसमैच हो रहा है. लाइक जलील wanted to do CCNA, तो वो मेरे CCNA के बैच में फर्स्ट आ गया. he is telling me let me complete CCNA and then I'll come to SD-WAN बैच. नहीं मैम, मुझे तो कंप्लीट करना है और कंप्लीट होने के बाद मैं इंटरनली SD-WAN में स्विच करने का प्लान देख रहा हूँ महिंद्रा में.
डू इट क्विकली, बहुत डिमांड है मार्केट में। नहीं मैम, टेक महिंद्रा के पास अभी थोड़ा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, टेक महिंद्रा के पास, यस यस करेक्ट। तो स्टार्ट हो रहा है तो जल्दी स्विच कर जाओ, ठीक है। बाकी मेरे को क्या बताना था आप लोगों को कि मैं इसको माइग्रेट करा देती हूँ एंड आई विल आस्क देम कि माइग्रेशन करते ही आप लोगों को मेल हो जाए, और मैं बता दूंगी ओम प्रकाश जी आपका ऑलरेडी है, ठीक है। हाँ मेरा था। हाँ आपका है, सो दैट आपकी कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहे, इंटैक्ट रहे, इट शुड नॉट मूव। तो कल अगर हमें प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायरमेंट भी होगी तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। डन, ओके। okay, so should I wind up now today's class here itself? So tomorrow also 9 o'clock, right ma'am? yes, अब Okay, हमारा ma'am. यही रहेगा, 9 ही रखेंगे हम, अपना कंटिन्यू करेंगे 9, Okay, okay, ठीक है। okay ma'am. डन, सो बाय फॉर नाउ। मैम हाँ जी बोलो, एक क्वेश्चन था मेरे लिए। पूछो पूछो। क्या ये हम टी-लॉक्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये कैसे कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा चैलेंजिंग है ट्रबल शूटिंग में ना, और इसे समझ, क्योंकि हमें वो डिस्प्ले जब कमांड वो टी-लॉक शो करता है उसमें वो टी-लॉक्स की जो ट्रांसपोर्ट का जो आईपी है सर्विस प्रोवाइडर का या हमारे end पे, वो चीज नहीं दिखा था टी-लॉक सिस्टम आईपी के साथ, क्योंकि जब थाउजेंड्स ऑफ साइट्स होंगी तो वहां पे सिस्टम आईपी से आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सी साइट है, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है इसके अलावा, एसडी वैन ये वीमैनेज का भी एक्सेस नहीं है, तो ट्रबल शूटिंग डिफिकल्ट होती है। और वैसा हमारे जो नेटडीबी है हमारा डेटाबेस नेटवर्क की, वहां पे सिस्टम आईपी या फिर कुछ उसका ऐसा कुछ दिख नहीं रहा हमें, वहां पे वहां नहीं दिखा था, बस हमें बस सिस्टम का वो जो किस ग्लोबल आईपी से एक्सेसिबल है वो वीएच डिवाइस को उसका आईपी बस दिखता है हमारे पास, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखती है, बट फिर डीपली जाना पड़ेगा और वो ट्रबल शूटिंग थोड़ी टफ हो जाती है, टाइम टेकिंग है। राइट, आई अंडरस्टैंड, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ना फिर गलत प्लानिंग कर रखी है। एटलीस्ट आपको ना वी मैनेज का मॉनिटरिंग लेवल वाला एक्सेस देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वी मैम मैनेज की इसी प्लान में मॉनिटरिंग मैं एक एक्सेस से बहुत आपको डिवाइस की पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, टी-लॉक्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कौन सा टी-लॉक है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है, यू गेट टू नो, एंड ट्रबल मैम मेरा एक शूटिंग इज वेरी प्रोडक्शन का इजी। या मैम मेरा एक प्रोडक्शन का नॉलेज मतलब शेयर कर रहा हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन में ना जो साइट आईडी होता है ना और जो न्यूमेरिक वैल्यू होता है ना उसको भी मतलब ये किया गया हुआ है, मतलब जैसे कि 10 ऐसे करके कुछ स्टार्ट होता है ना, तो 1 से वो मतलब इनकोडिंग है, मतलब 1 से वो होता है कि नॉन रेजिलेंट है, या 2 से मतलब स्टार्ट होता है कि रेजिलेंट साइट है, उसके बाद 2 सपोज, उसके बाद 10 है, तो 10 के बाद वो कौन सा रीजन में आता है, वो अटैक में आता है ये या एमिया में आता है या कौन सा सारी रीजन में आता है। ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्लानिंग हाँ अच्छे से हो रखी है तो सारी ऑर्गेनाइजेशन में साइट आईडी इसी तरीके से प्लान होता है। हाँ, तो उसके बाद कंट्री कोड आता है, ऐसे करके ना वो पूरा मतलब डिजाइन ही ऐसा है। तो आर्किटेक्ट लोगों ने जो डिजाइन किया ना, तो थोड़ा बहुत कुछ उन्होंने डेमो भी हमें समझाया कि ऐसे 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 हमने प्लान करके ऐसे किया है, लेकिन इतना कुछ तो नहीं बताया कि हम कौन सी साइट से उनका साइट आईडी क्या होगा या फिर ऐसा, जैसा कि आप बोल रहे हैं ना अभी, तो वैसा कुछ उन्होंने डीपली कुछ नहीं बताया कि प्लानिंग तो में। ओम प्रकाश, क्या आपको अपनी HLD और LLD मांगनी पड़ेगी और उसके बाद आपको समझना पड़ेगा। HID LLD अगर अगर आपको वो नहीं देते तो आप उनसे रन बुक मांगो, रन बुक तो आपका राइट है उनसे मांगना, रन बुक में आपको डिटेल मिल जाएगी। हाँ ठीक है, बट क्या है ना कि मेरे ही एक लेवल 2 के थे हमारी टीम में, अब वो मूव हो गए लेवल 3 के लिए, ठीक है। वो तो मैंने एक्चुअली उनसे बहुत कुछ पूछा भी है, तो वो उनसे ये मैंने पूछा कि हमारा जो डेटा सेंटर डिजाइन है, क्या हमें इसका कुछ डायग्राम मिलेगा, कैसे क्या कनेक्टिविटी है, मुझे थोड़ा बताएंगे आप, जब मैं इसमें आया इस प्रोजेक्ट में नया नया। तो वो बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ नहीं है, खुद से ही ढूंढना पड़ता है, बाकी जो उनमें डिवाइस की डिटेल मिलेगी लेकिन कनेक्टिविटी की नहीं पता चलता है, वो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन समझ समझ के, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, मतलब कि देखो अगर वो आपके साथ सब कुछ शेयर कर देंगे तो आप मूव कर जाओगे, आप प्रमोट हो जाओगे। नहीं पता नहीं। पता क्यों नहीं? That's always there. So getting documents from anybody, it's not easy. You need to follow a proper channel that you need it. That is your right.
तो आप अपना रन बुक तो आपका राइट है, आप मांग सकते हो, ऑफिशियली मांग सकते हो, ठीक है। चलो अब लेट मी वाइंड अप इट हियर इटसेल्फ टुडे and we'll connect tomorrow, and tomorrow I'll start policies and rest आपके जितने TLOC हो गया, आपका ZTP हो गया, जो भी डाउट्स है, जब once हम पॉलिसी फिनिश करेंगे by next week, and उसके बाद लेंगे, ओके मैम। ठीक है। Done? Is that everybody agree? Yes, ma'am. Okay, then thank you everyone. Bye bye. Bye, ma'am. Thank you.